Right then. Let's begin. So last class हमने van der Waals constants A and B just discussion start किया था. Last theory class में we have just started the discussion on real gases. उसमें हमने discuss किया था कि real gases का ideal gas से जो deviation है, for that we have defined a new quantity called as compressibility factor or Z, right? Z का value can be equal to 1. If it is equal to 1, then the real gas is behaving like an, बताओ, if Z is equal to 1, correct. If Z is equal to 1, then the real gas is behaving like an ideal gas. Whereas if Z is not equal to 1, it can be less than 1 or greater than 1. In that case, the real gas is deviating from ideal behavior. उसके अलावा हमने एक और चीज डिस्कस किया था कि Z का वैल्यू एट वेरी लो प्रेशर्स एंड Z का वैल्यू एट वेरी हाई प्रेशर्स. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z एट वेरी लो प्रेशर्स, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? At very low pressures, correct, it is less than 1, and at very high pressures it is greater than 1. इसके अलावा हमने एक और डिस्कस किया था कि अगर Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, अगर Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इज द गैस मोर कंप्रेसिबल और लेस कंप्रेसिबल? Z ग्रेटर देन 1 के लिए, करेक्ट, Z ग्रेटर देन 1 के लिए द गैस इज लेस कंप्रेसिबल एंड Z लेस देन 1 के लिए इज मोर कंप्रेसिबल, राइट? सो यहाँ तक हमने डिस्कशन जो है कंप्लीट कर लिया है. इसके अलावा मैंने आपको एक और पार्ट बताया था कि A और B आर van der Waals constants. They vary from gas to gas, right? A is dependent on, A किस चीज पे डिपेंड करता है? A is dependent on, बताओ. A is dependent on intermolecular force of attraction, correct? A is dependent on intermolecular force of attraction or the attractive forces between the molecules, whereas B is dependent on, correct, B is dependent on size of the molecules. अगर कोई भी एक molecule larger है तो उसका B का value भी large रहेगा, right? So just like we had discussed in the last class, so A is dependent on intermolecular force of attraction, right? अगर intermolecular force of attraction increase करता है, obviously A का value भी increase करेगा. B का value is dependent on size of molecule. If the size of molecule increases, very simply the value of B will also increase. Okay? B देखो समझना काफी simple है. अगर suppose करो मैं आपको example दे रहा हूँ, let's say H2 and N2, and suppose करो अगर आपको B का value compare करना है, नेचुरली आप मुझे बता सकते हो बिटवीन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन किसका साइज लार्जर होगा? ऑब्वियसली नाइट्रोजन का साइज लार्ज होगा. हाइड्रोजन इज जस्ट वन शेल वेयर एज नाइट्रोजन इज टू शेल्स. ऑब्वियसली नाइट्रोजन का साइज लार्ज होगा. सो इन दोनों में ऑब्वियसली नाइट्रोजन का B का वैल्यू वुड बी लार्जर. ओके, लेट्स मे बी टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज करो मैं आपको दूं मे बी समथिंग लाइक CO2 and maybe something like SO2. ऑलराइट, ऑब्वियसली कौन सा लार्जर रहेगा इसमें बताओ? Obviously SO2 large रहेगा, right? So B is very simply dependent on whatever is the size of the molecule. जितना molecule का size ज्यादा उतना ही ज्यादा उसका B का value. A is dependent on intermolecular force of attraction. Now A is dependent on polarity, but polarity हमने नहीं पढ़ा है अभी तक, right? So A अभी के लिए बस इतना समझो कि अगर आपके पास एक polar molecule है, obviously अभी आपको polar का मतलब नहीं पता है. If you have a polar molecule, then A का value increases. All right. If you have a non-polar molecule, then obviously A का value decreases. ये चीज अभी के लिए आप नोट कर लो बस. पोलर नॉन पोलर क्या होता है ये आप केमिकल बॉन्डिंग में करोगे. पोलर मॉलिक्यूल के लिए A का वैल्यू इज लार्ज, नॉन पोलर के लिए A का वैल्यू इज कम. राइट, इसके आगे आप एक और सेंटेंस भी लिख सकते हो. B is dependent on size. B is dependent on size. A is dependent on intermolecular force of attraction. Okay, आप यहाँ पे एक और पॉइंट मेंशन कर सकते हो with regards to A कि अगर A का वैल्यू इंक्रीज करता है then it is easier to liquefy. Liquefy the gas. Okay, ये काफी ऑब्वियस है. देखो, between solids, liquids and gases,
लीस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा बताओ? ऑब्वियसली गैस में होगा। तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता है तो आपका गैस जो है वो लिक्विड की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, यस और नो? सो इसी तरह से अगर आपका ए का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है, व्हिच इज व्हाई इट इज इजियर टू लिक्विफाई। ऑलराइट, सो अगर आपका ए का वैल्यू इंक्रीज करता है देन इट इज इजियर टू लिक्विफाई द गैस। एंड वन मोर पॉइंट कि जो हम एक डिप का वैल्यू बनाते हैं इन द जेड, इन द ग्राफ ऑफ जेड वर्सेस पी, जो हम एक डिप बनाते हैं, ऑलराइट, नाउ ये पार्ट ऑफ द ग्राफ किस इक्वेशन से रिप्रेजेंटेड होता है? दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय z इज इक्वल टू 1 minus a by VRT, yes or no? yes or no? ये जो डिप होता है ये तो चलो ग्राफ ऊपर की तरफ गया, बट ये जो ग्राफ नीचे की तरफ आया ये किस चीज से रिप्रेजेंट होता है? ये इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट होता है। तो अब आप बताओ, अगर a का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो ये और लोअर जाएगा या हाइयर जाएगा? अगर ए का वैल्यू मैं इंक्रीज करता हूँ, करेक्ट, अगर ए का वैल्यू आप इंक्रीज करते हो तो ये ग्राफ का डिप जो है वो और भी लोअर जाएगा। ओके, लेट्स से कि अगर सपोज पर मैं दो ग्राफ बना रहा हूँ, दिस इज फॉर A1, दिस इज फॉर A2, ऑब्वियसली A2 का वैल्यू जो है दैट विल बी ग्रेटर देन A1। ओके, या जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता है उतना ही ज्यादा आपका ग्राफ में डिप आएगा। इज दैट क्लियर? समटाइम्स अ क्वेश्चन मे बी गिवन टू यू कि आपको 4 गैस दे देगा एंड आपको सबका प्रेडिक्ट करना है कि अच्छा कौन सा गैस इसको बिलोंग करता है, राइट? सो यू कैन आल्सो यूज दिस वन। कंप्लीट कर लो यहां तक। लिख लिया? ऑलराइट, नाउ लेट्स टेक वन वेरी सिंपल एग्जांपल। सपोज करो कि अगर आपको दिया जाए NH3 एंड नाइट्रोजन, ऑलराइट, एंड आपको इसमें ए का वैल्यू कंपेयर करना है। नाउ ए का वैल्यू कंपेयर करने का दो बेस्ट तरीके हैं। पहला तो पोलैरिटी, ओके, कि इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, बट आपने तो अभी तक पोलर मॉलिक्यूल नहीं पढ़ा है। तो दूसरा मेथड इज कि इसमें से किसको लिक्विफाई करना ज्यादा इजी होगा। ओके, अब वेरी ऑब्वियस है, बिटवीन अमोनिया एंड नाइट्रोजन विच इज इजियर टू लिक्विफाई? ऑब्वियसली अमोनिया। भाई क्या कर रहे हो? ऑब्वियसली अमोनिया इज मच इजियर टू लिक्विफाई। हाउ का क्या मतलब है? ये तो ऑब्वियस होना चाहिए। अमोनिया कैन वेरी इजीली बी ऑब्टेन्ड इन लिक्विड स्टेट, बट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट इज -196 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलो ठीक है ये। ओके, अभी के लिए आप यही समझो, आपने पोलर नहीं पढ़ा है, बट अदरवाइज दिस पार्ट इज वेरी ऑब्वियस। सो इट इज मच इजियर टू लिक्विफाई अमोनिया रादर देन नाइट्रोजन। ओके, चलो हम एक और एग्जांपल, ये हो सकता है आपने शायद स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा होगा, आई एम नॉट श्योर, बिटवीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑलराइट, नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट इज -196, नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट इज -196 डिग्री सेल्सियस एंड ऑक्सीजन का इज -188 डिग्री सेल्सियस। ओके, बताओ किसको कूल करना इजियर होगा? ऑब्वियसली ऑक्सीजन को इजियर होगा, राइट? सो इन दोनों में अगर मैं ए का वैल्यू कंपेयर करूं तो ऑब्वियसली किसका ज्यादा आएगा? ऑक्सीजन का ज्यादा आएगा। इज दैट क्लियर? नोट कर लो इस चीज को। सो विच एवर इज इजियर टू लिक्विफाई हैज अ ग्रेटर वैल्यू ऑफ ए। कंप्लीट कर लिया? कंप्लीट कर लिया? ऑलराइट, नाउ इसी के साथ हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। वी आर कंटिन्यूइंग इन रियल गैसेस। सो इसी में देखो एक और आपका वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है विच इज योर लिक्विफैक्शन, लिक्विफैक्शन ऑफ रियल गैसेस। ऑलराइट, लिक्विफैक्शन ऑफ रियल गैसेस। इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि आइडियल गैसेस कैन नेवर बी लिक्विफाइड। आइडियल गैसेस कैन नेवर बी लिक्विफाइड। व्हाई? आप खुद बताओ मुझे, व्हाई कैन एन आइडियल गैस नेवर बी लिक्विफाइड इन योर ओन वर्ड्स? वेरी गुड, एक आइडियल गैस को हम कभी भी लिक्विफाई नहीं कर सकते क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स ही नहीं है, राइट? जस्ट लाइक हमने मेंशन किया कि सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस में अगर आप गैस टू लिक्विड जा रहे हो तो अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज करना चाहिए, बट बिकॉज देयर इज एब्सोल्युटली नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन केस ऑफ आइडियल गैस, व्हिच इज व्हाई एन आइडियल गैस कैन नेवर बी लिक्विफाइड। आप चाहे तो इसका रीजन लिख सकते हो। रीजन,
no attractive force. Reason, no attractive force between molecules. ओके बट एक रियल गैस को तो हम लिक्विफाई कर सकते हैं. आप कोई भी गैस देखो, नाइट्रोजन का ऑल्सो भी लिक्विफाइड, ऑक्सीजन का ऑल्सो भी लिक्विफाइड, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, एनीथिंग एल्स कैन बी लिक्विफाइड. एनी रियल गैस कैन बी लिक्विफाइड. यहां तक आप कॉपी कर लो फटाफट पहले. कॉपी कर लिया. Now, liquefaction के लिए हम यहाँ पे तीन important terms define करते हैं. For liquefaction of real gases, we define three very important terms. The first term is critical pressure. The first term is critical pressure. All right. Critical pressure को हम represent करते हैं by PC, critical pressure. Now, सबसे पहले आप ये definitions लिख लो, फिर मैं आपको एक साथ समझाता हूँ. Critical pressure क्या होता है? It is the minimum pressure. It is the minimum pressure which must be exerted over gas in order to liquefy it by decreasing temperature only. मैं एक और बार पढ़ रहा हूँ. It is the minimum pressure which must be exerted over gas in order to liquefy it by decreasing temperature only. Next is your critical temperature. Critical temperature को हम रिप्रेजेंट करते हैं by TC. इसका definition, it is the maximum temperature at which a gas can be liquefied. It is the maximum temperature at which a gas can be liquefied by increasing pressure only. And then you have critical volume. कॉपी कर लो फटाफट पहले यहाँ तक. Done. So critical volume क्या होता है? It is yes, this is maximum temperature. यहाँ पे minimum pressure था, but यहाँ पे maximum temperature है. It is the volume of a real gas, RG, real gas, at critical point. Critical point basically क्या होता है? Critical temperature and critical pressure. Critical temperature and critical pressure. देख लिया आप सभी ने? Alright. देख लिया आप सभी ने? Alright. So before we discuss more into this, we need to discuss a separate part. Now, copy नहीं किया क्या? Copy कर लो.
डन। ऑलराइट, सो देखो सबसे पहले देखो, कोई भी कोई भी मटेरियल हो, उसका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फेज को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दिस इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कि अगर आप प्रेशर एंड टेम्परेचर देखते हो तो उसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पे है सॉलिड, यहाँ पे है लिक्विड, यहाँ पे है गैस। ऑलराइट, नाउ पे अटेंशन। लेट्स से आई एम गिविंग यू सर्टेन वैल्यूज ऑफ प्रेशर। लेट्स से दिस इज प्रेशर 1, ऑलराइट, दिस इज प्रेशर 2, दिस इज प्रेशर 3, ऑलराइट, एंड दिस इज प्रेशर 4। मैंने तो यहाँ पे बस रैंडमली कुछ आपको वैल्यूज बता दिया है, ऑलराइट। एंड लेट्स से दिस इज टेम्परेचर 1, दिस इज टेम्परेचर 2, दिस पर्टिकुलर इज टेम्परेचर 3। आप पहले समझ लो, अगर जरूरत पड़ेगी तो आप ड्रॉ कर लेना, पहले आप समझ लो, ऑलराइट। एंड लेट्स से दिस इज अ रैंडम वैल्यू टेम्परेचर 4, एंड एक और अच्छा वैल्यू दे देते हैं टेम्परेचर 5। कौन सा लाइन? ये वाला, हाँ ये वाला टेढ़ा है, मतलब दिस इज नॉट अ वर्टिकल लाइन, दिस इज अ बेंट लाइन। एंड ये वाला ऐसे कर्व्ड लाइन ही है, ये जो लाइन है दिस वन, दिस इज अ कर्व्ड लाइन। बट इनके सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है, दिस इज जस्ट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग ना। सबसे पहले आप मुझे ये बात बताओ कि P1 प्रेशर पे, ओके, P1 प्रेशर पे कौन सा स्टेट एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम T इज इक्वल टू 0 से लेके T इज इक्वल टू इंफिनिटी? करेक्ट। अगर मेरा प्रेशर बहुत ज्यादा लो है, देखो ध्यान दो, P1 प्रेशर इज ऑब्वियसली वेरी लो। सो P1 प्रेशर अगर बहुत ही लो प्रेशर है तो मैं कुछ भी टेम्परेचर रखूं, ये चीज जो है फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी गैस फॉर्म में ही रहेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई अगर मॉलिक्यूल्स को रोकने वाला या अगर उसको बांधने वाला कुछ भी नहीं है तो वो ऑब्वियसली कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? वो गैस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। यस और नो? बिकॉज देयर इज नो फोर्स कीपिंग द मॉलिक्यूल्स टुगेदर। यस और नो? ओके, नाउ अब आप नेक्स्ट ध्यान दो P2 प्रेशर पे, ऑलराइट। P2 प्रेशर पे फ्रॉम 0 से इंफिनिटी क्या क्या स्टेट एग्जिस्ट कर रहे हैं? करेक्ट, सॉलिड, P2 प्रेशर पे, P2 प्रेशर पे सॉलिड एंड गैस एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। यानी कि P2 प्रेशर पे मैं गैस को जो है सॉलिडिफाई कर सकता हूँ, ऑलराइट। P3 प्रेशर पे क्या क्या एग्जिस्ट कर रहा है बताओ? करेक्ट, P3 प्रेशर पे सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। एंड P4 पे, P4 पे भी सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि अब देखो, अगर मुझे इस गैस को लिक्विफाई करना है, ओके, अगर मुझे इस गैस को लिक्विफाई करना है तो मुझे मिनिमम प्रेशर कितना डालना पड़ेगा? इफ आई वांट टू लिक्विफाई अ गैस, करेक्ट, सो इफ आई वांट टू इवन थिंक अबाउट लिक्विफाइंग अ गैस, मुझे मिनिमम प्रेशर जो है वो P3 रखना ही पड़ेगा। ये सुनो, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, मुझे मिनिमम प्रेशर जो है वो P3 रखना ही पड़ेगा अगर मुझे लिक्विफाई करना है तो। ऑलराइट, नाउ लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम टेम्परेचर साइड। ओके, अब हम टेम्परेचर साइड से कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अब आप मुझे ये बताओ कि जो मैंने T5 वैल्यू लिया है वहां पे P0 से P इंफिनिटी तक मुझे क्या दिख रहा है बताओ? कौन सा स्टेट एग्जिस्ट करेगा? करेक्ट, मुझे गैस ही दिख रहा है जो कि एग्जिस्ट करेगा। हाँ, मुझे सिर्फ गैस ही दिख रहा है। आप इमेजिन करो ना कि ये चीज सपोज करो यहाँ पे ऐसे जा रहा है, एक बार के लिए इमेजिन करो, राइट। सो T5 में मुझे दिख रहा है कि ये सिर्फ गैस ही एग्जिस्ट करेगा। और अगर सिर्फ गैस ही एग्जिस्ट करेगा, दैट इज इफ आई कैन नॉट लिक्विफाई इट, तो ये कौन से गैस की तरह बिहेव कर रहा है बताओ? करेक्ट, दिस इज बिहेविंग एज एन आइडियल गैस। एंड हमने डिस्कस किया था कि फॉर अ रियल गैस टू बिहेव आइडियली हमारा कंडीशन क्या होता है? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। यस और नो? ओके, नाउ कंटिन्यूइंग। अब देखो T4 पे, क्या क्या एग्जिस्ट करेगा बताओ? करेक्ट, T4 पे लिक्विड एंड गैस एग्जिस्ट करेगा। T3 पे, T3 पे T3 पे ऑल एग्जिस्ट करेगा। और T2 पे, करेक्ट, T2 पे भी ऑल एग्जिस्ट करेगा। सो अब जो भी है उसके आगे पॉइंट ये है कि एज वी कंटिन्यू टू डिक्रीज द टेम्परेचर, राइट, एज वी कंटिन्यू टू डिक्रीज द टेम्परेचर, बट हमें प्रेशर का वैल्यू भी चेक करना पड़ेगा। ओके, अगर सपोज करो मैं कंडीशन कुछ ऐसा डाल दूं कि फिलहाल कंडीशन इज P1 प्रेशर एंड T1 टेम्परेचर,
P1 प्रेशर एंड T1 टेम्परेचर, तो क्या मैं उस गैस को लिक्विफाई कर सकता हूं? करेक्ट। अगर मैं P1 एंड T1 रखता हूं तो वो तो ये क्राइटेरिया हो गया, राइट। इन दिस केस आई सिंपली कैन नॉट लिक्विफाई इट नो मैटर व्हाट आई डू, ठीक है। तो अगर P1 प्रेशर है तो मैं कुछ भी टेम्परेचर रखूं मेरा गैस लिक्विफाई नहीं होने वाला है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं P2 रखूं तो भी मैं कुछ भी वैल्यू रखूं मेरा गैस जो है वो लिक्विफाई नहीं होने वाला है। P3 is the minimum pressure that I absolutely have to apply. Okay, P3 मुझे अप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी जाके मैं टेम्परेचर डिक्रीज करने पे उस चीज को मैं लिक्विफाई कर सकता हूँ। क्या ये आप सभी को समझ में आया? ओके, सो देखो जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन लिखा, देखो सो जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन लिखा ऑफ प्रेशर, इट इज द मिनिमम प्रेशर दैट विच मस्ट बी एक्सर्टेड ओवर गैस इन ऑर्डर टू लिक्विफाई इट बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर ओनली। क्या अब आपको ये डेफिनेशन का मतलब समझ में आया? क्लियर हुआ? ऑलराइट, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर। ऑलराइट, सो अब देखो यहाँ पे सेम चीज। अब देखो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता जाऊंगा, ओके ध्यान दो, लिक्विड एंड गैस, चलो सॉलिड को अभी के लिए छोड़ देते हैं हम अभी लिक्विड एंड गैस से डिस्कस करते हैं। ओके, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता जाऊंगा तो ये टेंडेंसी किस तरफ होगा, लिक्विड या गैस की तरफ? ऑब्वियसली गैस की तरफ, ठीक है। सो अब अगर टेम्परेचर हाई है और लेकिन मुझे उसको लिक्विफाई करना है तो मुझे प्रेशर क्या करना पड़ेगा? भाई प्रेशर क्या करना पड़ेगा? प्रेशर हाई करना पड़ेगा। प्रेशर अगर लो हो गया, प्रेशर देखो अगर टेम्परेचर हाई है, ओके लेट्स से दिस इज अ हाई टेम्परेचर, तो यानी कि इस केस में मेरा प्रेशर का वैल्यू भी क्या आ रहा है? हाई आ रहा है ना। और अगर टेम्परेचर लो है तो मेरा प्रेशर का वैल्यू भी क्या आ रहा है? लो आ रहा है। यस नो? ठीक है। सो यानी कि अगर आपको एक गैस को लिक्विफाई करना है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर ओनली, सो इन दैट केस व्हाट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब आउट ऑफ चलो एक मिनट में वापस से समझ में आएगा। करेक्ट, सो T3 इज माई मैक्सिमम टेम्परेचर, राइट। T3 इज माई मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि उसके आगे तो, इसके नीचे तो वो चीज कभी भी लिक्विफाई हो जाएगा, ठीक है, बट इसके आगे तो मुझे प्रेशर ही इंक्रीज करना पड़ेगा। आप इसको ऐसे समझो, ओके अंडरस्टैंड इट इन दिस वे। आप ऐसे भी समझ सकते हो इनफैक्ट कि there are two ways in which I can convert a gas into liquid. There are two ways, okay. First is pressure, second is temperature, okay. Now अब आप आराम से ध्यान दो, कोई जल्दी नहीं है। मुझे गैस से लिक्विड में जाना है तो प्रेशर क्या करना चाहिए बताओ? इंक्रीज या डिक्रीज? करेक्ट, आई शुड इंक्रीज द प्रेशर अगर मुझे गैस से लिक्विड में जाना है तो, ओके। एंड टेम्परेचर मुझे क्या करना चाहिए बताओ? करेक्ट, टेम्परेचर मुझे डिक्रीज करना चाहिए। ऑलराइट, अब देखो आपको समझ में आ गया है। सो अगर प्रेशर मेरा कांस्टेंट है तो मुझे टेम्परेचर क्या करना चाहिए बताओ? सेम, मुझे लिक्विड स्टेट में जाना है, करेक्ट, आई शुड डिक्रीज दिस, ओके। तो अगर मुझे इसको डिक्रीज करना है तो यानी कि इसका एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, यस और नो? ओके, इफ आई हैव टू डिक्रीज दिस फ्रॉम समवेयर तो ऑब्वियसली इसका कुछ एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो इसका ऑपोजिट केस, अगर मैं टेम्परेचर को इंस्टेड कांस्टेंट रखूं, ओके, तो प्रेशर को मुझे क्या करना चाहिए बताओ? करेक्ट, प्रेशर को इंक्रीज करना चाहिए। और अगर प्रेशर को मुझे इंक्रीज करना चाहिए यानी कि इसका कुछ एक मिनिमम वैल्यू होगा। क्या अब आपको ये पूरा क्लियर हुआ? ओके, सो अब आपका इसका मतलब एग्जैक्टली यही होता है। सो इसका मतलब देखो ये होता है कि क्रिटिकल प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर ताकि गैस मॉलिक्यूल्स को आप लिक्विड में बांध सको, ठीक है। एंड इट इज अ मैक्सिमम टेम्परेचर क्योंकि अब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, करेक्ट, अब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा, अब वो सीधा गैसियस स्टेट में ही जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन नाउ? एंड क्रिटिकल वॉल्यूम इज ऑब्वियसली अगर आप ये प्रेशर एंड ये टेम्परेचर रखते हो तो उस चीज का वॉल्यूम क्या आएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ऑलराइट, सो नाउ वी विल टेक द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी बिकॉज उसमें ज्यादा अच्छा डायग्राम है। देखो, सो वी आर डिस्कसिंग लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। यहाँ पर देखो एक काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये रहा, राइट। सो यहाँ पर देखो इफेक्टिवली हो क्या रहा है, पे अटेंशन। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, देन ऑफ कोर्स आई विल डिस्कस दिस वंस अगेन।
सो यहाँ पर देखो इफेक्टिवली वो कह रहा है कि यू हैव सम प्रेशर, यू हैव सम वॉल्यूम, वी आर ट्राइंग टू लिक्विफाई अ गैस। इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल वी आर ट्राइंग टू लिक्विफाई कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? बट डजंट मैटर, आपका ग्राफ हर जगह सेम ही आएगा। नाउ हियर वी आर ट्राइंग टू लिक्विफाई अ गैस। नाउ अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर वेरी हाई टेम्परेचर है, याद करो अगर वेरी हाई टेम्परेचर है, तो इन दैट केस अ रियल गैस वुड स्टार्ट बिहेविंग एज एन, correct, it will start behaving as an ideal gas. And for an ideal gas, what is the PV graph? एक ideal gas का तो मेरा PV graph इस तरह से है, yes or no? ओके, सो यहाँ पर देखो ये जो 50 डिग्री सेल्सियस वाला लाइन है, ये एग्जैक्टली इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो 50 डिग्री सेल्सियस रिप्रेजेंट्स एन आइडियल बिहेवियर। क्यों? क्योंकि दिस टेम्परेचर इज टू हाई फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू लिक्विफाई, तो इन दिस केस दिस इज बिहेविंग एज एन आइडियल गैस। ओके, सिमिलरली ये जो ग्रीन लाइन है, ओके, सिमिलरली ये जो ग्रीन लाइन है, दिस इज ऑल्सो द बिहेवियर ऑफ एन आइडियल गैस। क्या यहां तक आप लोगों को समझ में आया? Okay, now next thing, so this entire portion, okay, this ये जो purple line है, okay, ये जो मैं line draw कर रहा हूँ, okay, everything to the right of this is gas, okay, everything to the right of this is gas। क्यों? क्योंकि too high temperature या too low pressure, alright, either temperature is too high or the pressure is too low, everything to the right is a gas। ये जो ब्लू कलर का है, दिस इज लिक्विड प्लस गैस, मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूँ, राइट? एंड एवरीथिंग टू द लेफ्ट ऑफ दिस लाइन, ओके, दैट इज बेसिकली दिस लाइन इज लिक्विड। अभी मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूँ, ना ध्यान दो, बस आप अभी के इतना समझो, ये गैस है, ये लिक्विड प्लस गैस है, एंड ये लिक्विड है ना। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर डिक्रीज करता जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे 50 था, यहाँ पे 31.1 है, यहाँ पे 30.8 है, तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर डिक्रीज करता जा रहा हूं, इट इज बिकमिंग इजियर फॉर मी टू लिक्विफाई अ गैस, यस और नो? अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करता जाऊं तो मेरे लिए गैस को लिक्विफाई करना इजी होगा, ठीक है, या एक लिक्विड ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, एज सिंपल एज दैट। सो यहाँ पर देखो, जब मेरा टेम्परेचर वेरी हाई था तो लिक्विड का कोई चांस ही नहीं था। टेम्परेचर मैंने और थोड़ा सा लो किया, अभी भी मेरे को लिक्विड नहीं मिला। टेम्परेचर मैंने और लो किया तो देखो लिक्विड का मुझे बस एक पॉइंट मिला, ओके। लेकिन देखो जब मैंने टेम्परेचर और लो किया तो मुझे और ज्यादा लिक्विड मिला, ओके। नाउ माय लिक्विड इज मच मोर। जब टेम्परेचर और डिक्रीज किया, ऑब्वियसली लिक्विड का क्वांटिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, ये सुनो, समझ में आ रहा है सभी को? राइट, सो यहां पर देखो यही डिस्कशन हो रहा है कि अगर मैं टेम्परेचर को फिक्स कर दूं, इफ आई फिक्स द टेम्परेचर एट दिस, ओके, देन दिस इज द मिनिमम प्रेशर व्हिच मस्ट बी अप्लाइड, जहां पर कि मुझे लिक्विड मिलेगा। समझ में आ रहा है? अगर ये टेम्परेचर हुआ, तो अगर ये टेम्परेचर हुआ, इफ दिस इज माय टेम्परेचर, तो मैं कितना भी प्रेशर लगा दूं, इट इज नॉट गोइंग टू लिक्विफाई, ओके। एंड अगर मैं ये टेम्परेचर रखूं, तब तो आई हैव अ गुड रेंज ऑफ प्रेशर। समझ में आया ना? ऑलराइट, सो अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, लेट्स लुक एट दी पर्पल ग्राफ, ओके, पर्पल ग्राफ, रेड ग्राफ, जो भी है ये। सो देखो यहाँ पे इफेक्टिवली हो क्या रहा है कि राइट नाउ आई हैव अ गैस एट पॉइंट ए, ओके, पॉइंट ए पे गैस है। ये चीज आप कैसे बता सकते हो? ठीक है, रेड, पिंक, मजेंटा, जो भी है ये। सो पॉइंट ए पे देखो मेरे पास गैस है। हाउ कैन आई से दिस? क्योंकि प्रेशर क्या है, प्रेशर इज वेरी लो, यस और नो? इफ प्रेशर इज वेरी लो, हमने डिस्कस किया था कि अगर प्रेशर बहुत लो है तो मॉलिक्यूल्स को बांधने के लिए कुछ भी नहीं है, एंड अगर मॉलिक्यूल्स को बांधने के लिए कुछ भी नहीं है तो ऑब्वियसली वो गैस स्टेट में ही रहना प्रेफर करेंगे ना। देखो अब जैसे जैसे हम ए से लेके बी पे ट्रैवल कर रहे हैं, ओके, जैसे जैसे हम ए से लेके बी पे ट्रैवल कर रहे हैं ना, ये जो लाइन है इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। दिस एंटायर लाइन रिप्रेजेंट्स 50 डिग्री सेल्सियस, दिस एंटायर ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट्स 31 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, राइट? सो जब हम ए से बी ट्रैवल कर रहे हैं, द टेम्परेचर इज कांस्टेंट एट 21.5, बट प्रेशर का वैल्यू जो है हम इंक्रीज कर रहे हैं। सो अगेन, अगर हम गैस से लिक्विड जा रहे हैं, सो व्हाट वी मस्ट डू, वी मस्ट इंक्रीज द प्रेशर, yes or no? And that is what is exactly happening। यहाँ पे हम प्रेशर का वैल्यू क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो एक पॉइंट पे मेरा गैस जो है, सो एक पॉइंट पे मेरा गैस जो है वो लिक्विफाई करना स्टार्ट करेगा, yes or no? ओके, गैस एक बार में तो लिक्विड नहीं बनेगा, थोड़ा थोड़ा करके लिक्विफाई करना स्टार्ट करेगा। सो बी पॉइंट पे द गैस हैज जस्ट बिगन टू लिक्विफाई,
राइट। जब आप पानी बॉईल करते हो तो एक बार में तो सारा का सारा बॉईल नहीं होगा, इट विल स्लोली स्टार्ट टू बॉईल, पहले थोड़ा सा बॉईल होगा, फिर बाकी थोड़ा, फिर बाकी थोड़ा, एंड सो ऑन। अब रुक जाओ, अभी क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर को छोड़ दो, अभी आप सिर्फ इसको समझो। सो जब आप ए से बी जा रहे हो, द गैस इज स्टार्टिंग टू लिक्विफाई, द गैस इज स्टार्टिंग टू कूल डाउन। बी पे आपका फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड अपीयर्स, या बी इज द पॉइंट वेयर द गैस इज एक्चुअली टर्निंग इनटू लिक्विड। बी से सी में गैस जो है वो कंटिन्यूअसली लिक्विड में कन्वर्ट होता जा रहा है, विच इज वाई दिस इज अ लिक्विड एंड गैस मिक्सचर। देखो ध्यान दो, ध्यान दो। सो ए पॉइंट पे गैस है, ए से बी में इट इज स्टिल अ गैस। ओके, ए से बी में इट इज स्टिल अ गैस, ए से बी में इट इज स्टिल अ गैस। बी पे लिक्विफाई होना स्टार्ट हो रहा है। ओके, बी पे लिक्विफाई होना स्टार्ट हो रहा है। सो इट विल नॉट लिक्विफाई ऑल एट वंस, धीरे धीरे करके लिक्विफाई होगा। सो जब तक हम बी से सी पे जा रहे हैं, यहाँ पर आपका लिक्विड प्लस गैस का मिक्सचर है, गैस इज कंटिन्यूसली लिक्विफाइंग, एंड देन सी पे कंप्लीट गैस हैज बीन लिक्विफाइड। ओके, सी पॉइंट पे अब आपके पास और गैस नहीं है, सी पॉइंट पे अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ही प्रेजेंट है। अब अगर लिक्विड पे मैं प्रेशर इंक्रीज करूं, ध्यान दो, अब अगर लिक्विड पे मैं प्रेशर इंक्रीज करूं तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा क्या? लिक्विड्स कंप्रेसिबल होते हैं या इनकंप्रेसिबल होते हैं? करेक्ट, लिक्विड्स आर इनकंप्रेसिबल, whereas gases are highly compressible. So gases के केस में देखो मेरा वॉल्यूम काफी शार्पली डिक्रीज हुआ। ओके, लेकिन अब लिक्विड्स के केस में देखो मेरा वॉल्यूम बहुत ही कम डिक्रीज हुआ। इज दैट क्लियर? ओके, देखो गैसेस के केस में मैंने सिर्फ यहां से लेके यहां तक प्रेशर इंक्रीज किया एंड मेरा इतना वॉल्यूम डिक्रीज किया, लेकिन लिक्विड के केस में देखो मैंने यहां से लेके यहां तक प्रेशर इंक्रीज किया, फिर भी मेरा वॉल्यूम का डिक्रीज कितना हुआ? इतना ही हुआ। राइट, सो विच इज वाई लिक्विड्स आर इनकंप्रेसिबल। या देखो अगर मैं प्रेशर को बहुत ज्यादा भी इंक्रीज करूं तो तो भी लिक्विड का प्रेशर जो है बहुत ही कम डिक्रीज करता है। इज दैट क्लियर? लेट्स लुक एट अनदर लाइन। ओके, लेट्स लुक एट अनदर लाइन। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि नाउ व्हेन वी गो फ्रॉम पॉइंट ए टू लेट्स से दिस पर्पल ग्राफ, ओके लेट्स से वी गो टू दिस पर्पल ग्राफ और दिस वायलेट ग्राफ। नाउ यहाँ पे अभी जो सब्सटेंस है वो कौन से स्टेट में होगा बताओ? करेक्ट, इट इज इन द गैसियस स्टेट। बट यहां से यहां मैंने टेम्परेचर क्या किया? इंक्रीज किया। देखो यहाँ पे 21.5 पे है, बट यहाँ पे 30.8 पे है। ओके, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया। अब देखो अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया है, इज इट इजियर टू लिक्विफाई और डिफिकल्ट टू लिक्विफाई? ऑब्वियसली इट इज डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। अगर टेम्परेचर हाई है तो वो गैस फेज में रहना प्रेफर करेगा। टेम्परेचर हाई है तो वो गैस फेज में जाएगा ना। ओके, सो यानी कि इट इज मोर डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, एंड इफ इट इज मोर डिफिकल्ट टू लिक्विफाई तो ऑब्वियसली मुझे इस पे ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। ऐसा ना? ओके, सो अब देखो इस केस में मेरा लिक्विड कौन से स्टेट पे आया? इस प्रेशर पे आया। लुक एट दिस प्रेशर। वेराज जब यहां पर था तो मेरा लिक्विड कहां पे आ गया था? वो तो इसी प्रेशर पे आ गया था। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो देखो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हो मुझे प्रेशर भी इंक्रीज करना पड़ रहा है। ठीक है, और एक पॉइंट पे क्या होगा कि भाई अब वो और लिक्विफाई कुछ भी हालत में नहीं होने वाला है। सो दिस इज द लास्ट पॉइंट, this is the last point where pressure and temperature can liquefy a gas. Okay, इसके बाद इसके आगे और आपका गैस जो है लिक्विफाई नहीं हो सकता, इसके आगे a gas starts to behave ideally. So this point is basically called as your critical pressure and your critical temperature. क्या अब ये आप सभी को समझ में आया? We'll draw the graph separately as well, but आपको ये ग्राफ समझ में आया क्या? Alright, so let's draw this graph by ourselves. अब देखो ये वाला ग्राफ हम खुद से पूरा बनाते हैं। सो यहाँ पे देखो है प्रेशर, यहाँ पे है टेम्परेचर। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, सो दिस इज अ वेरी, दिस इज लेट्स से दिस इज अ लो टेम्परेचर। ओके, ये जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पहला लाइन जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, दिस इज लेट्स से लो टेम्परेचर। नाउ लो टेम्परेचर है यानी कि इसको लिक्विफाई करने के लिए मुझे काफी हाई प्रेशर चाहिए होगा, या लो प्रेशर से भी काम चल जाएगा? बताओ, लो टेम्परेचर है तो यानी कि डू आई नीड अ वेरी हाई प्रेशर, और या थोड़ा बहुत प्रेशर से भी काम चल जाएगा?
लो टेम्परेचर है ना, ऑब्वियसली तो मेरा लो प्रेशर से भी काम चलेगा रिलेटिवली, ओके, क्योंकि इसके ऊपर मैं और ग्राफ बनाऊंगा तो रिलेटिवली लोअर प्रेशर से मेरा काम चल जाएगा, ओके। सो इफ आई स्टार्ट टू इंक्रीज द प्रेशर, ओके, तो मेरा वॉल्यूम क्या करता रहेगा, डिक्रीज करता रहेगा, सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम होगा, ओके। सो मेरा वॉल्यूम क्या करता रहेगा, मेरा वॉल्यूम डिक्रीज करता रहेगा, okay. Now एक point पे the gas will start to liquefy, okay, the gas will start to liquefy and now it is converting into a liquid, and एक point पे क्या होगा कि मेरा गैस completely एक लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका होगा, जैसा नो, यहाँ पे गैस है, यहाँ पे गैस प्लस लिक्विड है, ऑलराइट, एंड एक पॉइंट पे अब ये चीज जो है कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। अब लिक्विड्स कंप्रेसिबल है क्या, लिक्विड्स कंप्रेसिबल, लिक्विड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, यानी कि अब लिक्विड का वॉल्यूम चेंज करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। इज दैट क्लियर? ये वाला ग्राफ क्लियर हुआ सभी को? ओके, दिस इज लेट्स से एट T1 टेम्परेचर, ये वाला पहले आप ड्रॉ कर लो। डन, ऑलराइट। नाउ लेट्स स्टार्ट एट अ स्लाइटली हायर टेम्परेचर, दैट इज T2 टेम्परेचर, ओके, T2, या चलो मैं इसको उल्टा लिख देता हूँ ताकि आगे के भी ग्राफ से बना सके कि T1 जो है वो लेस देन T2 है, ऑलराइट, या T2 जो है वो हायर है, ओके। सो अब अगेन यहाँ पर अब देखो क्या क्या, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, यानी कि अब इसको लिक्विफाई करने के लिए मुझे पहले वाले के रिस्पेक्ट में कम प्रेशर चाहिए होगा या ज्यादा प्रेशर, ऑब्वियसली पहले वाले के रेस्पेक्ट में तो मुझे ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल हैपन इज नाउ आई स्टार्ट टू कंप्रेस दिस, ओके, बट अब मुझे एक हायर प्रेशर चाहिए होगा, ठीक है। तो अब ये एक हायर प्रेशर पे जाके लिक्विफाई होना स्टार्ट करेगा, या फिर चलो इसको थोड़ा सा लगा रखता हूं, ओके। अब ये एक हायर प्रेशर पे जाके लिक्विफाई होना स्टार्ट करेगा, ओके, देन अगेन अ गैस लिक्विड मिक्सचर विल एग्जिस्ट, राइट, एंड देन अगेन एट अ सर्टेन पॉइंट इट विल कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू लिक्विड, एंड देन उसके बाद मेरा वॉल्यूम चेंज करना वुड बी वेरी डिफिकल्ट। इज दैट क्लियर? देखो समझ में आया क्या? ओके, सेम चीज अगर मैं कोई एक टेम्परेचर T3 पे करूं, ओके, एग्जैक्ट सेम ग्राफ जो है वो फॉलो होगा, ये सुनो। सो अब देखो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो गैस लिक्विड मिक्सचर है, राइट, ये जो गैस लिक्विड मिक्सचर है ये क्या करता जा रहा है, तो श्रिंक करता जा रहा है, ये सुनो, पहले केस में इतना बड़ा था कि गैस एंड लिक्विड कैन को एग्जिस्ट फॉर सच अ लॉन्ग कंडीशन, राइट, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, उसका लास्ट जो स्टेज होगा, जो लास्ट स्टेज होगा, दिस लाइन विल एग्जिस्ट एज अ, जो इसका लास्ट स्टेज होगा ये श्रिंक हो के, करेक्ट, ये लास्ट में श्रिंक हो के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, कैसा नो, समझ में आ रहा है सभी को? सो एट द वेरी लास्ट स्टेज इट विल कन्वर्ट इनटू अ सिंगल पॉइंट, मैं चलो इसको ऐसे बना दे रहा हूँ, at the last it will convert into a single point, okay, and then यहाँ पे गैस, यहाँ पे obviously liquid, this is the last point at which I can liquefy this, समझ में आ रहा है सभी को? सो दिस इज व्हाट इज योर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड योर क्रिटिकल प्रेशर। इफ यू अब देखो अगर मैं इस ग्राफ को कनेक्ट करूं कि इसके अंदर जो है वो गैस लिक्विड मिक्सचर है, ऑलरेडी अब आपको समझ में आ गया होगा, इसके अंदर का देखो गैस लिक्विड मिक्सचर है, इसके राइट में मेरे पास क्या है, गैस है, इसके लेफ्ट में मेरे पास क्या है, लिक्विड है, एंड अब इसके ऊपर हमेशा क्या आएगा, गैस ही आएगा, कैसा ना, ओके, क्योंकि अब और इस चीज को मैं और लिक्विफाई नहीं कर सकता। सो दिस इज Tc, दिस इज T4। देखो अब अगर मैं यहाँ पे वापस से हम इस ग्राफ पे जाते हैं तो देखो एग्जैक्ट सेम चीज ही रिप्रेजेंटेड है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? राइट, क्लियर, ओके। सो कमिंग बैक टू आवर ग्राफ, ड्रॉ कर लो इस चीज को, अरे ये कहाँ मिल गया, ओके, ऑब्वियसली आप थोड़ा मुझसे बेटर ड्रॉ करना, राइट, सो PDF नोट्स मतलब आप नोट्स नहीं बना रहे क्या?
माय रिकमेंडेड नोट्स, इसका क्या मतलब होता है? एक्विजिशन आगे आएगा। एक्विजिशन हम, वैसे तो मैं आपको अभी बता दूंगा, बट एक्विजिशन टिपिकली हम केमिकल इक्विपमेंट में डिस्कस करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, टीचर के नोट्स की प्रेफर करो, उतना ही काफी है। एनीवेज, यहाँ तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया क्या? कंप्लीट कर लिया? ऑलराइट। सो ये दिस इज द मेजर पोर्शन अबाउट लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। अगर आपको ये ग्राफ समझ में आ गया तो इसके आगे वी हैव टू कंप्लीट वन मोर स्टेप। राइट, इसके आगे वी हैव टू कंप्लीट वन मोर स्टेप। हाँ ठीक है, डाल्टन्स में है ना, चलो उसको हम कवर कर लेंगे। नाउ ग्राफ सभी ने कंप्लीट कर लिया? ऑलराइट। सो अब देखो, हमें यहाँ पे एक और सेपरेट पार्ट डिस्कस करना है, देन अगेन वील कम बैक टू दिस। नाउ सबसे पहले आप लोगों ने अगेन स्टैंडर्ड 10 में क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व किया होगा, यस और नो? लेट्स से इफ यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसके कितने रूट्स आएंगे बताओ? इसके दो रूट्स आते हैं, राइट? इसके दो रूट्स आते हैं। नो रूट्स यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल है? दे कैन बी रियल एंड यूनिक, ओके, या रियल एंड डिफरेंट, राइट? उसके अलावा और क्या क्या पॉसिबिलिटी है बताओ? करेक्ट, दे कैन बी रियल एंड इक्वल, एंड एक और क्या है कि बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, यस और नो? बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, ओके। नाउ सिमिलरली, अगर ये तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, उसके अलावा आपका क्यूबिक इक्वेशन भी पॉसिबल है, दैट इज एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट? एंड इसके कितने रूट्स आएंगे? ऑब्वियसली इसके 3 रूट्स आएंगे, राइट? एंड जैसे यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज थी, वैसे ही यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है बताओ? फर्स्ट आपका क्या हो सकता है? 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट, ओके, 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट या रियल एंड यूनिक, ऑलराइट? उसके अलावा और क्या हो सकते हैं? 3 रियल एंड इक्वल, कैसा नो? 3 रियल एंड इक्वल। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं बताओ? 3 रियल, ओके, 3 रियल, 1 सेम, सॉरी, 2 सेम एंड 1 यूनिक, 1 यूनिक एंड 2 सेम, ऑलराइट? उसके अलावा 3 रूट्स, बट उसमें से एक रियल हो एंड बाकी 2 इमेजिनरी हो, यस और नो? ओके, तीनों इमेजिनरी पॉसिबल है क्या? तीनों इमेजिनरी पॉसिबल है क्या? बोलो भाई, तीनों इमेजिनरी पॉसिबल है क्या? तीनों इमेजिनरी तो कोई हालत में पॉसिबल नहीं है, राइट? ऑल 3 इमेजिनरी, दिस इज सिंपली नॉट पॉसिबल। सो आपके ये पॉसिबिलिटीज है, ऑब्वियसली मैथ सर कैन टेल यू इवन बेटर, बट केमिस्ट्री के लिए इतना काफी है, राइट? सो नाउ व्हाट वी हैव टू फर्दर अंडरस्टैंड इज, नाउ ध्यान दो, अगर इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो यानी कि इस चीज को मैं कैसे लिखता हूँ? एक्स माइनस लेट्स से √1 इंटू एक्स माइनस √2, कैसा नो? अगर इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो मैं इस चीज को ऐसे लिखता। अगर इसके रियल एंड इक्वल है तो उस केस में मैं कैसे लिखता? एक्स माइनस R1 का स्क्वायर, यस और नो? ओके, सेम थिंग कमिंग बैक टू दिस वन, सेम थिंग कमिंग बैक टू दिस वन। अगर